Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for joining. Inshallah, let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Today, we're going to learn about two very profound hadiths, and they're actually connected with what we were doing in the last class. Just let's have a look at the hadith for the last class. So, in the last class, we learned about how a mu'min is somebody who is good-natured, whose personality is such that he's able to meet people in a positive way. Yet he has good social etiquettes, right? So a mu'min is ma'alaf, wala khayran fi man la ya'alaf wala yu'laf. So a mu'min is somebody who is social with other people, who has ulfat towards other people. And there is no good in a person who is not social with others, and people do not meet him with ulfat. So ulfat is closeness, right? And it's further qualified by this hadith that says the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked that, do you want me to tell you about a person who is forbidden to touch the fire, or the fire is forbidden to touch him? Such a person is one who is qaribin, haynin, laynin, and sahlin. And we understood all of these as qaribin, as in somebody who's approachable, who's accessible both emotionally and in other ways. You can approach them. They're not very harsh or rude person, or they're not like exclusive that you know nobody, only few people based on their stature can reach to them, right? And then haynin and laynin and sahlin, which all translates in together with to a person who's easygoing, a person who is who's not egoistic, a person who is soft-natured. Okay? So a polite, tender person who's easy to approach. That's the kind of person upon whom the Jahannam, the fire of Jahannam is haram, right? And that's what the Prophet ﷺ told us. Now the next hadith further qualifies this idea, and it says, "Ittaqun nara walau bishiqqi tamratin, faman lam yajid fabikalimatin tayyibatin." So ittaqu is obviously from taqwa. Have taqwa, as in be have protect. Taqwa is to protect, right? In its root, it is to protect yourself. So protect yourself from the fire, right? How do you protect yourself from the fire? Even if it is with a half date, right? Tamar is date. So even if it's with half a date, and we all are fasting right nowadays in Ramadan, and almost everybody has khajur, right? Hamari tables pe hoti hai. Aftar may be, and some people also have it in suhoor. And you can imagine how small half a date is, right? And this really encourages you to be the person who is not only, if you can afford, maybe sending Ramzan boxes and stuff to people's homes before Ramadan starts, which has dates in it so that they open their fast with that. Or if it's not possible, then aksar ye hota hai ki aftar ke waqt sometimes like kitchen mein kaam ho raha hota hai ya kuch, and not everybody is not there sitting on the the table or wherever you have your iftar, and you could be the person jo ek khajur jaldi se uthaye and break it into pieces and then jaldi sabko de de, taaki everybody can open their fast at the right time, and that would actually be like a guard against hellfire, like a protection against hellfire. That is an idea that is literal. And other than that, you could understand that as a financial thing as well, because date, it has a material value, right? It is a physical thing that you buy with money. So date has material value, and you can imagine कि एक डब्बा date का कितने का आता है अभी, and उसमें कितनी सारी खजूरें होती हैं, उसमें से एक खजूर का आधा की बात भी आपको जहन्नम से बचा सकता है, right? So Islam doesn't have any qualification कि आप कितना अल्लाह की राह में खर्च करो. एक तरफ you have like अपना तमाम साजो सामान हमारे सहाबा कराम अल्लाह की राह में दे देते थे, जैसे हजरत अबू बकर, हजरत उमर की वो है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी है वो आप घर से अपने लिए आए जंग के लिए, सो हजरत उमर
brought half of everything that he had, but Hazrat Abu Bakr took safqat on him, and because he bought everything that he had at his home. So एक तरफ we have that कि आप जितना दे दो अल्लाह की राह में, even everything you have अल्लाह की राह में दे दो, right? Even there are stories where we learn कि अक्सर अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए मफरूज भी हो जाते थे, but then they would obviously, Allah subhanahu wa ta'ala would take care of that qarza because it was like itna zyada dene wala hath. And on the other hand, if you're not able to do itna zyada, then even adha khajur ki aap de dein. So that is also going to protect you from the hellfire. And then the next hadith, next part of the hadith says, فَمَنْ لَمْ yajid. So if some yajid is to find, right? So if you're not able to possess that, if you can't find even that, then فَبِكَلِمَاتٍ طَيِّبَةٍ. Then with a kalima, a word, a phrase, a sentence that is tayyib, as in it's good, it's beautiful, it's wholesome, pleasant, right? So what does the entire hadith tell us? That this is a guard against hellfire. अगर आपको अपने आप को जहन्नुम से बचाना है तो आप किस तरह से अपने आप को जहन्नुम से बचा सकते हैं? आप अपने आप को जहन्नुम से बचा सकते हैं दो तरीके की बातें आई हैं, financial charity and verbal charity. So Islam doesn't differentiate between the wealthy and the poor. कि सदका की अगर बात होती है इस्लाम के अंदर and इतना ज्यादा उसको encourage किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर ही हैं जो सदका दे सकते. एक आधा खजूर की जो वैल्यू है उतना तो हम सभी कर सकते हैं मैनेज, राइट? एंड देन इफ वो भी नहीं हम मैनेज कर सकते तो इस्लाम इतना आसान दीन है कि वो उस इतनी छोटी वैल्यू की चीज को भी फर्दर क्वालिफाई कर रहे हैं कि अगर वो भी नहीं आप कर सकते तो फिर अच्छा प्लेजेंट जुमला तो किसी उसमें तो कोई पैसे खर्च नहीं होते, उसमें तो any human being can do that. If you are able to speak, you can, right? Even if you're not able to speak, you can write good. We are living in a world where many people, we interact with them, but we never hear them speak because we interact with them through the social media. या हम internet के through उनकी बातों को सुनते हैं, right? या हम पढ़ते हैं उनके comments, and you see that एक अजीब phenomena जो हमारे माशरे में है वो ये है कि क्योंकि आइडेंटिटी नहीं दिख रही होती है बिकॉज आपके अनोनिमस होती है आइडेंटिटी, या क्योंकि आप एक स्क्रीन के पीछे से लिख रहे होते हैं क्योंकि वो कोई बाउंड तो है नहीं कि आप सिर्फ अपनी एक ही वो बना सकते हैं एप्लीकेशन या जो भी आपकी प्रोफाइल होती है, आप मल्टीपल बना सकते हैं विद अनोनिमस आइडेंटिटीज, राइट? एंड यू सी पीपल स्प्यूइंग हेट रैंडम में, लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, राइट? अच्छा, इसमें ये नहीं बोला है कि आप उन्हीं को अच्छा बोलें जो अच्छा कर रहे हो. You can actually say good to people or just avoid saying bad, right? Don't say bad things to people. And if you can, then say good things to people. हमारे माशरे में इतनी अजीब सी चीज है कि इस्लाम ने जो चीजें सिखाई हैं आप उससे बिल्कुल बरखिलाफ होता देखते हैं. कितने सारे लोग होते हैं जो लोगों की तारीफ नहीं करते, ठीक है? इतनी मतलब मर्द होते हैं तो वो मर्दों की तारीफ आपस में नहीं करते कि मर्द थोड़ी ना आपस में तारीफें करते हैं, ये तो औरतों का काम होता है. अगर आप औरतों में देखें तो औरतें भी आप देखते हैं कि उनकी अलग अलग किस्म की जेलसीज होती हैं तो वो तारीफ नहीं करते. टू द पॉइंट कि अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, अगर आप किसी से अच्छा वर्ड्स बोल रहे हैं तो इट इज कंसिडर्ड कि आप मक्खन लगा रहे हैं. मक्खन नहीं खत्म हुआ अभी तक, तुम्हारे पास तो बहुत मक्खन का स्टोरेज है कि हर वक्त मक्खन लगाते रहते. एंड यू लाइक जरूरी तो नहीं है कि किसी वजह से ही आप किसी की तारीफ करें जिसका कोई दुनियावी प्रैग्मेटिक रिटर्न मिलना हो आपको, क्योंकि इस्लाम तो हमें बिल्कुल ही अलग चीज सिखाता है कि we shouldn't be focusing on being good to people because they can give us some benefit. We should be good to people just because it is a way of protecting ourselves from the hellfire, right? So this is very important for us to understand. And how are you good to people? पिछली हदीस में ही हमने ये देखा, अल-मुमिन मालफ वला खैरा मिन फीमन ला यअलफ वला युगलफ, that a mu'min is someone who is sociable. When you're good to people, when you're pleasant, automatically people want to associate with you, right? Then further कि जहन्नुम की आग ऐसे बंदे पे हराम है जो करीबन हाइनिन लाइनिन सहलिन, as in a polite, accessible, tender personality, easy going personality के जो लोग होते हैं. एंड ऑटोमेटिकली यही वो लोग होते हैं जिनसे यू एक्सपेक्ट कि वो जब आप उनसे बात करेंगे
तो दे विल नॉट से एनीथिंग जो आपको गंदा फील कराए या आपको लुक डाउन अपॉन कर रहे होंगे या आपको बैड फील करवा रहे होंगे। इंस्टेड वो आप अक्सर औकात उनके मुंह से प्लेजेंट बात ही सुनेंगे। If they are comment, they will be praising you, they are being nice, they are being kind. If आपने उनके लिए मेहनत की है, they will appreciate it. So they are the kind of people who are the polite natured, kind natured, tender hearted, easy going people, जिनके बारे में ये है कि जहन्नुम की आग उन्हें नहीं छुएगी। वही लोग होते हैं जो अच्छे कलेमात आपको के मुंह से हमेशा अच्छी बात ही सुनने को मिलती है। वो कभी भी किसी को हर्ट करने की बात नहीं कर रहे होते कि किसी को बुरा भला कह रहे हो, किसी के साथ बद कलामी कर रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली इट इज बोथ कनेक्टेड, इट इज ऑटोमेटिक। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू करते हैं इस हदीस को देख के कि जहन्नुम की आग आप पे हराम है, अगर आप गुड नेचर्ड है, आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, आप अच्छी तरह से लोगों से मिलते हैं, कराबत के रिश्तों को और दूर के रिश्तों को भी आप अच्छे से निभाते हैं, और आप लोगों के साथ प्यार मोहब्बत और शफकत और उल्फत के साथ लोगों को डील करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप वो लोगों में से भी हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं होगा एंड यू आर अगेन एंड अगेन प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम द फायर, बिकॉज यू आपकी पर्सनालिटी ऐसी बन चुकी होगी कि आप जब किसी से बात करेंगे so you're going to say a pleasant thing. This is the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as well. So ये एक ऐसी बात, एक ऐसी आदत है अपने अंदर अपनाने की, राइट? अगर हमारा माइंडसेट को हम सही कर लें तो हम इतना आसानी से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि मोमिन का माइंडसेट तो आखिरत की फिक्र वाला होता है। हमने ये हदीस देखी थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया दैट मन जअला हुमूम हम्मन वाहिदन हम्मल मआदी कफाहु अल्लाह, that whoever makes his concern the hereafter, the akhirah, Allah will take care, be kafi for his dunya ke concerns. So मोमिन का concern तो जो आखिरत होती है, right? And anything that can protect him from the hellfire, वो उसका obviously वो उसकी तरफ वर्क करता है। एंड इतनी खूबसूरत बात है कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी अच्छी करेंगे तो लोग भी आपसे अच्छे से मिलेंगे, आपको दुनिया में भी फायदा होगा, people will remember with you with good words, right? And you will have a pleasant life, because when you have people around you who like you and they find positivity to be around you, then they are likely to be around you. Even आप बुढ़ापे में भी होते हैं तो ऐसे लोग कि बुढ़ापा भी बहुत अच्छा गुजरता है बिकॉज लोग उनके इर्द गिर्द होना पसंद करते हैं, राइट? तो आपकी जवानी, आपका every phase of your life will be beautiful because people would want to be around you because you exhibit positivity and hence you also get that back from people, right? तो आपकी दुनिया भी अच्छी है, आपकी बुढ़ापा जिसमें यूजुअली पीपल आर लोनली वो भी अच्छा हो जाएगा, आपका आखिरत भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि आप जहन्नुम से बच रहे हैं। एंड इतनी बड़ी बात ये है कि आपको साथ ही साथ सुन्नत पे अमल करने वाली पर्सनालिटी भी आपकी हो जाएगी कि आप रोज सुन्नत पे हर लम्हा अमल कर रहे हैं, क्योंकि द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अ वेरी प्लेजेंट स्वीट पर्सनालिटी। He would never say anything hurtful to any person. Even उनके जो गुलाम थे उनको भी कभी भी उन्होंने डांटा नहीं, कभी भी उन्होंने उनके साथ बदकलामी नहीं की। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had a pleasant nature and he always had something good to say. If he did not like something, then he would remain quiet. ठीक है? So आप फिर every लम्हा of your life सुन्नत पे भी अमल कर रहे हो, तो इसमें इससे बेहतर क्या है जिंदगी के लिए, right? So this is a beautiful hadith and it gives us an amazing basharat and it's really really something that हम अगर इस पे work करेंगे तो हमारी दुनिया and आखिरत दोनों का फायदा है, right? And वो क्या है? Just practice being good. Try to say a good word. And ये इतना अगर आप इसके ऊपर working करना शुरू करेंगे आपकी जिंदगी हर तरह से बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि for you to say something good you need to be able to see something good. And when you start seeing good, you get the very big thing that is husn zan in Islam, which is having positive thoughts about other people. And when you start seeing good in others, automatically you start seeing good in your life as well. And then when you see good in your life, then you start doing shukr for that good and you become among the shakireen. And we've learned and we've studied about the shakireen के कुरान में आता है कि शैतान ने बोला ही यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कि मैं इन लोगों को बहरा रवी का शिकार बता, I will make them go astray and you will see that very few of them will be शुक्रगुजार. Most of them को आप नाशुक्रा पाएंगे. So अगर हम उन लोगों में से हो जाएं जो शुक्रगुजार में से हैं, तो this is in itself कि हम शैतान के बहकावे में नहीं आए.
तो ये इतना, it starts from a good word, ठीक है, it starts from a single smile, it's so small, it's so छोटी सी चीज से शुरू होता है एंड उसका रिवॉर्ड इतना बड़ा हो जाता है कि आप पहले प्रैक्टिस करें कि आप गुस्सा आ रहा हो तो मुस्कुरा दें, हंस दें, अपने आप को कंट्रोल कर लें उस गुस्से को। फिर आपको कुछ बुरी बात आ रही है तो खामोश हो जाएं, बट कोशिश करें कि लोगों को अच्छा बोलें। कोई तैयार हुआ है तो उसकी तारीफ करें, कि ऑफिस के अंदर किसी ने कोई प्रोजेक्ट पे मेहनत करके प्रेजेंट किया है, अच्छा हुआ है, उसकी तारीफ करें, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करें एक्चुअल। ये नहीं बस जो हम फेसबुक के ऊपर कोई अपने पोस्ट डालते हैं तो सब कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन लिख देते हैं एंड उनसे अगर 1 महीने बाद पूछो तो उन्हें याद भी नहीं होता, राइट? या बस ईमेल्स के ऊपर फॉर्मेलिटी में आपने कॉन्ग्रेचुलेशन भेज दी, नहीं, एक्चुअली दिल से बी हैप्पी फॉर पीपल, राइट? That's when you're going to be able to say good about people. And once you start doing that, automatically ये एक element है एक अच्छी personality, good natured personality के बंदे का, वो आपका बन जाएगी। उसके बाद once you become kind hearted and good to people, then this is the next hadith that even makes it, you know, like amazing. al khalqu iyalullahi fa ahabbul khalqi ila Allahi man ahsana ila iyalihi, right? So the khalq, right, the creation, all creation, right? Iyalullahi is iyal of Allah, is the iyal is basically anyone who is provided for by a master. Okay, so you can imagine that everything that Allah provides for, every single thing in this dunya that Allah subhanahu wa ta'ala provides for, Allah ki wo iyal ho gayi, okay? And everything Allah has created is also his iyal. So you can imagine that everything is Allah's iyal, okay? Because Allah is the creator and he has created everything. आप, मैं, काफिर, मुसलमान, सबको अल्लाह ने क्रिएट किया, जानवर, हर चीज अल्लाह ने क्रिएट की, ठीक है? सो और ये हर चीज जो है अल्लाह की क्रिएशन की बात हो रही है, वो तमाम तर जो है वो अल्लाह की इयालुल्लाह है, अल्लाह की डिपेंडेंस है, अल्लाह की फैमिली है। आयला का वर्ड इस्तेमाल होता है अरबी में फॉर फैमिली। सो they are family of Allah, they are dependents on Allah, Allah is providing for them, ठीक है? तो आगे क्या आता है, فأحب الخلق إلى الله, so and the ones who are and the most beloved from the creations of Allah, ठीक है, to Allah, ठीक है, are the ones who are good to his iyal, are the ones who are good to his dependents. Man ahsana ila iyalihi. Ahsana, again, as I before told you, this is haseen and beautiful, excellent, but it is like akbar, like we say Allahu Akbar, right? So akbar and ahsan, these are the same pattern, and iska meaning hota hai greatest, matlab it's the highest level, right? So great, greater, greatest. So Allah is the greatest, right? So ahsan is beautiful, most beautiful, and the perfect, like बहुत ही ज़्यादा, उससे beyond कुछ नहीं होगा. So that kind of treatment जो अल्लाह के dependents की तरफ करता है, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो उनकी तमाम मखलूकात में से अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा beloved है. तो ये है आपके लिए फायदा for doing this, for developing a positive, kind personality, for being good to people, for cultivating ऐसी nature आपकी अपनी, जो लोग आपसे मोहब्बत करें, ठीक है, एंड आप लोगों से मोहब्बत करें, एंड आप लोगों के साथ बेस्ट सलूक करें, ठीक है, जिसमें आ जाता है कि आप उनसे बात जब करें तो अच्छी बात करें, उनको हर्टफुल जुमले ना बोलें, अगर कोई बुरी बात है भी तो कोशिश करें कि उसको या तो बहुत ही एहसन तरीके से आप उस बात को उनके पास पहुंचाएं, जिसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं. इफ देयर इज समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट, एंड यू वांट टू कम्युनिकेट, कभी कभार इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योरसेल्फ एज वेल, क्योंकि दीनुन नसीहा, सो आपको सिंसियर एडवाइस भी देनी होती है, उसमें कभी कभार आपको जरूरत पड़ती है कि आप सामने वाले को ऐसी कोई बात बताएं जो उसको नागवार गुजर सकती है, मगर उसके भी तरीका होता है, राइट, उसका तरीका होता है. आप पब्लिक ऐसे वो मेथड सोचें, अपने ऊपर रखें कि अगर आपको कोई ऐसी बात बता रहा होता तो आप क्या प्रेफर करते हो, कैसे बता, राइट? वुड यू हैव प्रेफर्ड के फेस टू फेस ना होती ये कॉन्वर्जेशन में भी एक मैसेज प्राइवेट में डाल देता, राइट? या यू वुड हैव प्रेफर्ड कि सबके सामने ना बोल दें, कोई कॉर्नर में लेके जाके नॉर्मल बात में बोल दे, या
और ज्यादा आप उसको कर सकते हैं कि आप उनसे बात करें तो आप स्टार्ट करें विद देयर पॉजिटिव क्वालिटीज, प्रेज देम ऑन देयर गुड, बट जस्ट एंड में जस्ट बी लाइक लेकिन बस ये एक छोटी सी चीज है जो मेरी निगाह में मैंने सोचा हो सकता है कि आप में ये ना हो, बट आई फील एंड मेरे आई 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 काइंड ऑफ थिंक कि ऐसा एक एक पर्सनैलिटी में आपकी ट्रेड पैदा हो रही है जो हो सकता है अभी रिसेंटली डेवलपमेंट हो किसी वजह से। यूं करते हुए डोंट मेक इट कि आप हैं ही ऐसे या पब्लिकली उनको आप इंसल्ट करने लगे, but take them into a corner, try to wrap your criticism in a way that it's digestible for the other person, and then very politely, very pleasantly put it forward. And बाद में don't treat them इस तरह कि जैसे you know like आप में ये खराबी है and you are the person who has identified it. नहीं, just be very kind and nice to them कि उनको feel ही ना हो कि you know like that moment where you are morally correcting somebody, the other person feels inferior. But you should not, you should make sure that when that very person is with you in different scenarios, तो वो आपके साथ अपने आप को inferior ना feel करे, तो फिर वो जो एक अजीब सी situation हो जाती है वो चली जाएगी. And then the last thing is if you think that you know like हर सूरत में this person is going to get hurt, then make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for either to fix the issue itself, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, or to give you the fahm or the strategy in which you can deal with that situation in a way कि सामने वाला hurt now, right? That's the kind of personality somebody who cares for other people has. And and when you care about other people, then you try to do the bestest for them, especially in a moment जब आपका जो करने वाला action है वो शायद उनको hurt कर सकता है या शायद उनके लिए मुश्किल हो सकता है, right? So जो हदीस है वो हमें यही सिखा रही है कि you have to have the best इखलाक, you have to have the best treatment towards the dependence of Allah. And Allah के dependent कौन है? Every single thing that Allah has created and Allah provides for is the dependent of Allah. So चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई दरख्त हो, हर चीज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्रिएट की है वो अल्लाह का डिपेंडेंट है. एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए के नजदीक वो लोग अल्लाह के बिलवेड है, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, जो लोग अल्लाह की क्रिएशंस के साथ अच्छा सलूक करते हैं, ठीक है. एंड आई डोंट थिंक अच्छा सलूक इज समथिंग जो मुझे मजीद क्वालिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि हम सबको पता है अच्छा सलूक क्या होता है, ठीक है. It is the same suluk. Agar if it's a woman in front of you, it's the same suluk you would do with your own daughter. So do that suluk that you would with your daughter with another woman that's standing in front of you. If it's a man, then do the suluk जो आप अपने खुद की औलाद के साथ करते हैं, right? Yeah, you know like when you start creating relationship के parallels, तो आपके लिए आसान हो जाता है to decide कि आपको सामने वाले को कैसे treat करना है, right? So firstly, हमें पता है good treatment क्या होती है, right? Good treatment आपके लिए second nature बन जाए, उसके लिए आपको अपनी nature पे काम करना पड़ता है. So you start with a smile, okay? You start with doing pehel. You do it with doing pehel in salam. ये सब हदीस से ही I'm drawing कि आप पहल करें सलाम में, आप smile करें, right? या अगर किसी ने आपको hurt किया है तो be the first one to like try to mend the situation. Have positive thoughts for people. Don't have assumptions or negative thoughts about people. ठीक है. So ये सब आप अपनी personality झूठ ना बोले, ठीक है. अगर कोई बात है तो if it's hurtful then and it's not necessary then stay quiet. And कोशिश करें कि जब बोलें तो अच्छा बोलें, ठीक है. तो ये सब अगर आप 5 चीजों को फोकस कर लें कि इस रमजान आप अपना गोल बना लें कि ये 5 चीजें मुझे करना है. आई वांट टू इंक्रीज माय स्माइलिंग, आई वांट टू इंक्रीज माय कॉम्प्लीमेंटिंग पीपल ऑन द गुड दैट दे डू, ठीक है. I want to increase my pehel in salam, always being the first one to introduce or greet, ठीक है. And I want to be the first one कि अगर कोई नाराजगी या लड़ाई हो जाए तो I want to be the first one to mend, ठीक है. एंड आप ये गोल बना लें 5वां कि आई वांट टू बी द वन जो जब बोले तो अच्छा बोले, एंड जब नीडेड नहीं है तो बुरा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश है, और अगर जरूरत है तो बहुत सोच समझ के ऐसे तरीके से बात करूं जो सामने वाले के लिए लीस्ट हर्टफुल सिनेरियो होगा, ठीक है. सो ये 5 चीजों को आप अपना गोल बना लें फिर दिस रमजान. मेक दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला
कि आपकी पर्सनैलिटी में ये 5 चीजें आ जाए। अब उसके बाद you will start seeing कि आहिस्ता आहिस्ता you will start working your way towards a very kind, soft, easygoing personality. Keep the hadith in front of you. Always remind yourself of it कि आप क्यों अच्छी तरह से लोगों से treat कर रहे हैं, right? So ये तो आपके लिए एक practical step हो गया। फिर आपका mindset क्या हो सकता है? दो mindsets that I can suggest. Number one is to keep the reward in front of you. The reward is not only being protected from the hellfire, but also becoming the beloved of Allah. These are the rewards. ठीक है, ये आपका reward है for being good. So ये reward in itself ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, right? And the second thing that you can think of is whenever you come in contact with anyone, ठीक है, think of it as an opportunity to do good deed. मतलब अपनी आखिरत की साजो सामान में चीजें जमा करने की opportunity, ठीक है? क्योंकि आखिरत की जब हम आखिरत में what are we trying to do? We're trying to be successful, and the ones who are successful are not the ones who go to Jannah, but मतलब सेम ही बात है कि वो जहन्नुम से बच के जन्नत में चले जाएंगे. So they're both connected. So कोई भी ऐसा अमल जो आपको जहन्नुम से बचा रहा हो वो आपको जन्नत की तरफ लेके जाएगा. So आखिरत में हमारा फोकस यही होता है. So आखिरत के बैंक वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था, invest in your आखिरा. So the second mindset would be that whenever you meet any human being, it is like an opportunity to get a reward in your akhirah bank, ठीक है? And you can get it by something as small as saying a good thing to them. And I don't think that is difficult. You can comment, you can compliment anyone for anything. If कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो फिर if you make a mindset of complimenting people, of being pleasant to them, of saying good to them, जल पहल करना, racing towards good, treating people in good ways, तो फिर आपके लिए अल्लाह ताला और opportunities open करते जाएंगे, ठीक है? So you could have that mindset as well कि लोग आपके लिए एक आखिरत की इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है? सो जिस तरह हम दुनिया में ये हमारा माइंडसेट होता है कि फला कॉन्फ्रेंस में अगर हम जाएंगे और जितने भी वहां पे लोग आएंगे, तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपना बिजनेस कार्ड इनको दें, या लाइक जितने लोगों से भी हम मिलेंगे उतने लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा एंड उतना हमारा फायदा हो सकता है. सो वी लुक एट एवरी सिंगल पर्सन एज एन अपॉर्चुनिटी, राइट? सो सिमिलरली इन दी आखिरा, अगर आपका फोकस आपकी आखिरत होगी तो भी आपको हर इंसान एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखेगा, बट नॉट एन अपॉर्चुनिटी कि वो आपको दुनिया में कुछ पलट के दे सकता है, बट एन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी आखिरत संवार लें. और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्लाह का जो महबूब होगा, अल्लाह का जो बिलवेड होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह उसका साथ छोड़ दे, कि वो किसी मसले में और मुश्किल में फंस जाए और वो कोई अपना हामी और नासिर ना पाए? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो साथ हैं अपने बंदों के, राइट? सो ही इज ऑलवेज करीब, ही इज नियर, he is the wali, he is a friend of his people, he is the protector, he is the supporter, he is the one who provides and helps, right, his beloveds. So Allah Taala के beloved होना में बहुत बड़ा फायदा है. दुनिया में किसी चीज का इतना बड़ा फायदा नहीं होगा जितना इसका फायदा है कि अल्लाह आपको अपना beloved समझे. ना ये सिर्फ ये नहीं कि आप अल्लाह को अपना beloved समझे, बट अल्लाह आपको अपना beloved समझे. तो ये तो बहुत ही बड़ी आपके लिए फायदे की चीज हो जाएगी इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, ठीक है? एंड उसका तरीका क्या है? हैविंग अ गुड नेचर, बीइंग काइंड टू पीपल, बीइंग गुड टू पीपल, ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू ट्रीट पीपल विद द बेस्ट इखलाक, विद द बेस्ट आपके पास डिसीजन होता है एवरी टाइम. यू आर सपोज्ड टू डिसाइड कि आप किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करें. आपको कोई हर्ट कर रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज आसान वाला तो बहुत आसान होता है कि अगर कोई रैंडमली किसी के साथ गुड ट्रीट करना, एंड ट्रस्ट मी 80% ऑफ द टाइम यू वुड बी डूइंग द इजी वाला, क्योंकि ज्यादातर ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होती है. बट हाँ, 20% ऑफ द टाइम वो क्रिएट होगी सिचुएशन जिसमें आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अच्छे से बिहेव करना. लेकिन अगर आपके सामने दो चीजें होंगी कि आपको जन्नत मतलब आपको आखिरत में जहन्नुम से प्रोटेक्ट करेगा ये एक्शन, एंड आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जहन्नुम क्या चीज है, और दूसरी तरफ अगर आपके सामने ये होगा कि आप अल्लाह के बिलवेड हो जाएंगे, तो फिर आई थिंक आपके लिए आसान हो जाएगा उस मुश्किल सिचुएशन के अंदर हार्ड चॉइस को चूज करना, राइट, विच इज टू बी गुड.
which is to actively choose kindness when you are being treated with harshness. That is what our Prophet did. Imagine, and ये सुन्नत भी है, right? क्योंकि आप याद करें कि किस तरीके से मक्का के लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को persecute किया था. इसका जो if you read the seerah again with इस मतलब जब हम mature होते हैं and we go through things in our life where people treat us badly and then you go back to the seerah and you study कि वही मक्का के लोग जो उनका इतना beloved मक्का था, that वो इतना उदास थे मक्का छोड़ के जब वो जा रहे थे, उनका beloved मक्का के लोगों ने उनको वहां से इतनी बुरी तरह से निकाला, जानते हुए कि वो सादिक और अमीन है. बहुत से उनको पता था कि वो जो बात कह रहे हैं वो झूठे नहीं है, बट उनपे इतने खराब, उनके ऊपर इंसल्ट्स, उनको इतना हर्ट किया, उनको इतना पेन दिया, और सिर्फ उनको नहीं, उनके इर्द गिर्द के लोगों को इतना पेन दिया. तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी पर्सनैलिटी थी, जो गुड नेचर्ड पर्सनैलिटी होती है, जिनकी कोशिश होती है सबके साथ अच्छे से बिहेव करने की, अगर उन्हें ये दिखता है कि उनकी वजह से लोगों को बुरी तरह से लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो वो उनके लिए और ज्यादा पेनफुल होता है. एंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजह बना के उनके दीन पे, क्योंकि मतलब जो वो दीन लेके आए उस पे तुम लोग चल रहे हो, तो उनको कितनी ज्यादा तकलीफों से गुजारा सहाबा कराम को. इवन उनकी बेटियों को तलाक करवा के घर वापस भिजवा दिया, 2 बेटियों को, बिकॉज देयर फादर वाज प्रीचिंग इस्लाम एंड दे हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम. सो इस लेवल के ऊपर पेन दिया ना सिर्फ उन्हें बट उनकी इर्द गिर्द के लोगों को भी. दैट इज व्हाट द पीपल ऑफ मक्का डिड on the. हम क्या पढ़ते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, that he was the person जिसके पास सब अपना सामान रख पाते थे, because they knew he सादिक एंड अमीन, and even हिजरत के टाइम पे भी सामान रखवाया हुआ था. Like even during the persecution they still knew that he is not going to like fraud with us or anything. मतलब उनकी जो शख्सियत थी उन सबको उस वक्त भी पता था कि वो कौन है, बट स्टिल कितनी ज्यादा तकलीफ और कितना ज्यादा परसिक्यूट और कितना ज्यादा टॉर्चर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया. बट हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पॉन्स क्या था? जब फतेह मक्का हुई उन्होंने आम माफी दे दी. दिस इज व्हाट द रिस्पॉन्स फॉर प्रॉफिट वाज, दैट ही डिड द बेस्ट behavior, right? He was at his best behavior. Even हिंदा, जिसने हजरत हमजा जो कि उनके इतने ज्यादा beloved थे, उनको मांगा था अल्लाह ताला से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एंड जिस तरह से हिंदा ने उनकी बेहुरमती की थी, उनकी उसके ऊपर भी जब हिंदा ने इस्लाम कबूल किया है, तो it was very hard for the prophet, but he accepted that as well, right? So this is something that we all should look towards. He is the model of excellence for us. And जब वो इतनी ज्यादा तकलीफ जिन लोगों ने उन्हें दी, क्या आपके लिए जो पर्सन है वो कोई गलत बात बोल रहा है? Can it be compared to the way the prophet was persecuted by the people of Makkah? क्या उसके सामने कुछ भी है? उसकी उसकी मतलब उसकी वेट है आपके साथ जो बैड ट्रीटमेंट कोई पर्सन कर रहा है? रिमेंबर व्हाट द प्रॉफिट हैड टू एंड्योर एंड हाउ ही रिस्पोंडेड, एंड हाउ आज तक दुनिया में टिल टुडे उन्होंने जो वो अमल किया था, आज तक वो अमल जो है वो किस उससे लिया जाता है कि दिस इज द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, दिस इज व्हाट ही वाज, दिस इज द एक्शन दैट ही टुक. टिल टुडे nobody can say against him after reading the story of the conquest of Makkah and how he treated everyone. The aam maafi ka concept, right? And then Quran में भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह मियां ने कहा है कि आप इनसे अच्छे से शफकत से पेश आए, वरना ये दूर चले जाएंगे आपसे. So even अल्लाह ताला नबी पाक को भी यही सिखा रहे हैं और हमें भी इन एक्सटेंशन यही सिखाया जा रहा है. एंड आसानी है हमारे लिए अगर हम ये समझें कि जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द वो अल्लाह की फैमिली है, अल्लाह के डिपेंडेंट्स हैं, अल्लाह उनको प्रोवाइड करते हैं, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बॉस का बेटा है, आप जहाँ जॉब करते हैं एंड बॉस का बेटा आपसे बदतमीजी कर रहा है, आप खामोश रहेंगे, यू विल नॉट पलट के डू बदतमीजी. इनफैक्ट यू वुड ट्राई टू बी इन हिज गुड बुक्स. आप ट्राई करेंगे कि आप बाद में जरा उनकी गुड बुक्स में आ जाए वापस से. बिकॉज क्यों? क्योंकि वो बॉस का बेटा है. अगर आप इसी तरह से देखने लगे कि पूरी दुनिया में जितनी भी क्रिएशन है वो सब बॉस की क्रिएशन है, अल्लाह की क्रिएशन है, और अल्लाह उन्हें प्रोवाइड कर रहे, तो आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा कि आपको उनको ट्रीट कैसे करना है. और जब रिटर्न में आपको जहन्नुम से बरात मिल रही हो और अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, राइट?
So may Allah subhanahu wa ta'ala make us amongst the people who understand. May He make us amongst the people who have the best ikhlaq, who can do amal on the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the kind of ikhlaq that he had. आप दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह ताला हमें आप अपना महबूब बना लें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक पर चलने वाला बना लें। सिर्फ उनकी तमाम सुन्नतों में उनके इखलाक की जो सुन्नत है वो हमें अता फरमाए, बाकी सुन्नतों को भी अता फरमाए, बट इखलाक की सुन्नत अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ करें कि आप बहुत ही काइंड और प्लेजेंट नेचर्ड पर्सनालिटी बन जाए। आप ऐसी पर्सनालिटी बन जाएं कि जो लोगों के लिए पॉजिटिविटी का बायस हो, कि लोग आपसे मिलें तो ऐसा लगे कि एक प्लेजेंट हवा का झोंका या कोई बहुत ही मर्सी और बहुत ही प्लेजेंट पर्सन से उनकी मुलाकात हुई। कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरीके का बना दे जिसका इस्लाम के लिए भी बहुत फायदा है, हमारी दुनिया के लिए भी बहुत फायदा है, हमारी आखिरत के लिए भी बहुत फायदा है, राइट? May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us our namaz, our roza, our ibadat, and may He make us amongst the people who He loves. And may He enable us कि जब हम गुस्से की हालत में हों तो हम ये हदीसें हमारे सामने आ जाएं और हम इन पे अमल कर सकें, और ना सिर्फ उस मोमेंट में हम फलाह हासिल कर लें, बट आखिरत के अंदर भी हम उन लोगों में से हो जाएं जिनको अल्लाह ताला ने मुफलिहून कहा है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। If anyone has any questions, you can always ask on the group, and inshallah I will see you in the next class.